Hello students, I am going to continue with the chapter Application of Definite Integrals of 12th Science. Exercise 5.1, question number 1, example number 5. So the question you already know, that is we have to find out the area of the region bounded by the following curves, x-axis and a given line. So we are given the example, that is xy is equals to 2. So this is the equation of the curve. And we are given the two conditions, that is x is equals to 1 and x is equals to 4. So the equation, that is the function, that is xy is equals to 2, we have to find out the value of y. So y is equals to 2 upon x. We are taking this x to this side. Now we have to find out the area under the curve. So without drawing figure we can also find it. So area is equals to, you are given the limits, that is 1 to 4. So the lower limit is 1 and upper limit is 4, and y, we have to take this function, that is y dx. And so what is the value of y? So it is 2 upon x. So integration, that is 2 upon x dx from 1 to 4. So a is equals to, be taking this constant outside, that is 2, integration of 1 upon x from 1 to 4 dx. So the integration of 1 upon x is nothing but the log x, and the limits are, that is 1 to 4, and the 2 outside as it is. So 2 taking, that is upper limit minus lower limit, so log 4 minus log 1. So here, that is log 4, that is subtraction, so we are taking the division. You can also solve that, you know the value of log 1 is 0, so only log 4 is remaining. You can solve by this method, or you can take this one also, that is 4 upon 1, that is 4. So 2 log 4, and so we are taking this, 2 is nothing but the power of the 4, so log 4 square. So here we get the answer, that is log 16 units square. So a is equals to log 16 units square. So this is the answer of this example. So without drawing the graph or figure, we can also solve this one. Now see the next example from the same question, question number 1, example number 6. So the equation is y square is equals to x. So this is the equation of the curve, and you are given the limits, that is x is equals to 0 and x is equals to 4. So you know, that is, this is the equation of the parabola that you will learn in the 11th science. The chapter is conic section. The parabola, that is the figure is like this one. So this structure is called as the parabola. This structure touches this y axis and it is on the x axis. ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम पैराबोला इसे बोलते हैं. ये जो है, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है. सो वी कैन से दैट इज दिस पैराबोला इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट टचेज द वाई एक्सिस. यू नो द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स एक्सिस का है वाई इज इक्वल्स टू 0. तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये यहाँ पे है 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू 4. आई ड्रॉ हियर द लाइन बिटवीन दिस 4. सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे मैं एक जस्ट नाम दे रही हूँ, दैट इज़ ये वी कंसिडर इट एज अ ओ. एक्चुअली इट्स 0 बट वी कंसिडर इट एज अ ओ. यहाँ पे है a, यहाँ पे है b और अगेन यहाँ पे o. सो ये जो क्लोज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो हम पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ये जितना होता है उतना ही ये भी होता है. सो आफ्टर टू सॉल्व द और टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ ऑल दिस पार्ट, वी हैव टू टेक द 2 ऑफ दिस शेडेड पार्ट. एंड द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ राइट हैंडेड पैराबोला. एंड राइट हैंडेड पैराबोला का जो इक्वेशन रहता है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स. सो वेन एवर यू सी दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, so it is nothing but the equation of the parabola. So y square is equals to x. Listen that in all these type of examples we have to find out the value of y, not y square. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, taking square root of both sides, so we get here y is equals to plus minus root x. तो अभी ये जो देखो y की जो वैल्यू है रूट एक्स प्लस और माइनस, तो प्लस वाला जो पार्ट है ये है ऊपर का है और माइनस वाला पार्ट जो है वो नीचे का है. सो नीचे का मतलब ये इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देखेंगे. सो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, दैट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय OCABO. मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ इसका नहीं ले रही हूँ, टोटल जो हमें दिखाई दे रहा है जो एरिया, ये वाला मैं यहाँ पर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ.
तो ये सब पार्ट का हम एरिया टुगेदर ले रहे हैं. तो O, C, A, B and again O. So this is total closed structure. We have to find out the area of this total closed structure. अगर हम ऐसे करते कि O, A, B, O इस पार्ट का करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा. मैंने अभी बोला था कि डबल हमें इस दो पूरा निकालने के लिए हमें इसका डबल लेना पड़ेगा. ऐसा करने से पहले हम क्या करें कि ये टोटली उस पूरा का पूरा हम उसका एरिया ले रहे हैं. तो एरिया बाउंडेड बाय O, C, A, B, O इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ y dx. इसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं एंड 0 to 4. मैंने अभी बोला कि ये 0 से 4 तक यहाँ पे बाउंडेड है. तो y dx, y का जो इक्वेशन है वो है √x. सो 2 मैंने बाहर ले लिया. 2 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो डबल पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं. मतलब या इसका और इसका मिला के हम एरिया फाइंड आउट करें. तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है. सो 2 y dx. सो 2 √x को सॉल्व करके हमने लिखा है x⁻² फ्रॉम 0 to 4. सो x⁻² मतलब 3/2. इंटीग्रेशन लेने के बाद ये 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2. यू नो द फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इज इक्वल्स टू x⁻n+1 अपॉन n+1. तो x⁻³ अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4. 3/2 ऊपर आएगा तो होगा 2/3 एंड यहाँ पे हम x को रिप्लेस करेंगे बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो 4⁻³ एंड 0⁻3/2. तो ये 2 2 ज़ा 4/3 होगा. अभी ये 4⁻3/2 हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दैट इज़ 4⁻3/2 मतलब 4⁻²3 एंड 4⁻² मतलब √4 विच इज़ नथिंग बट 2. 2 क्यूब दैट इज़ नथिंग बट 8. सो वी कैन डायरेक्टली पुट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस वन दैट इज़ 8 एंड यहाँ का तो आंसर 0 होगा. तो 4 8 ज़ा 32 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now see the question number 7. So it is also the same type of example. So y² is equals to 16x. So इस टाइप का अगर एग्जाम्पल होता है तो वो होता है पैराबोला. तो यहाँ पे हमने फिर से पैराबोला का फिगर ड्रॉ किया है. हमें जो इक्वेशन दिया है वो ऑलरेडी दिया है कि 0 to 4. तो यहाँ से 0 to 4 मतलब ये 0 है और यहाँ से 1. मैं यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ करती हूँ. 1, ये 2, ये 3 और ये 4. मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसका जो इक्वेशन है वो है x⁻4 और इसका जो है वो x⁻4. तो यहाँ पे x⁻0. तो यहाँ पे ये जो टोटल मैंने अंडर लाइन ड्रॉ की है इस टोटल पोर्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया था. सेम वही यहाँ पे हम करें. तो y² है. मैंने अभी बताया था कि y को हमें y² को हमें y में कन्वर्ट करना है. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. सो हमें यहाँ पे मिला +-4 √x. तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और फोर्थ. तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है. सो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4 √x. नाउ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दैट इज़ OCAB. OCAB ये टोटल एरिया हम यहाँ पे फाइंड आउट करें. मतलब इसका जो है इस पार्ट का डबल हम ले रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 एरिया बाउंडेड बाय OABO. इसका डबल हम यहाँ पे ले रहे हैं. तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 to 4. अभी y की जो वैल्यू है वो है 4 √x. सो 0 to 4. सो 4 इज़ अ कांस्टेंट. सो टेकिंग इट आउटसाइड. सो 2 into 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x⁻². √x मतलब x⁻² dx. So 2 4s are 8. So the integration of this part is again x⁻³ upon 3/2 from 0 to 4. So 8 into ये 3/2 का 2/3 होगा and we replacing this x by upper limit minus lower limit. So 4⁻³ minus 0⁻3/2. तो यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाएगा. सो 8 2 ज़ा 16/3 इंटू ये अभी हमने सीखा कैसे फाइंड आउट करते हैं. 4⁻3/2 मतलब 4⁻³ ये मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 आंसर है 2⁻3 इज इक्वल्स टू 8 एंड सो 16 into 8 दैट इज़ 128 अपॉन 3 यूनिट स्क्वायर. सिंस हियर वी फाइंड द एरिया so the unit must be unit square. So this is all about the question number 1 of this exercise 5.1.
Now we are going to start with the same exercise, that is exercise 5.2, but question number second. So question number second is totally related with the parabola. So the question is, find the area of the region bounded by the parabola. So before going to start with this concept or this question, just we know about what is the meaning of what is the types of parabola. We already learned it in the 11th science, but just I am going to repeat it ताकि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आ जाए. तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराबोला के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए. सो पैराबोला इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन. तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पैराबोला में कौन कौन से वर्ड हम यूज़ करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये सब हम यहाँ पे समझ लेंगे. तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा वाला मैंने अभी आपको दिखाया था. तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैराबोला. ये जो स्ट्रक्चर है, इट ऑलवेज टचेज द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और यहाँ से ओरिजिन से, दैट इज़ ओ, यहाँ पे हमें ज़ीरो दिखाई रहे, यहाँ से टच होके वो यहाँ पे जाता है. तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला. तो यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट रहता है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं फोकस. आपको ये सब टर्म्स याद रखना है. तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे एक जो पॉइंट है एस, उसको हम बोलते हैं फोकस. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ओ से एस तक, वो ए है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर ए, 0. एस के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो है ए, 0. अभी यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है. सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक पॉइंट हम लेंगे, ये वाला. तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, माइनस है. ये डिस्टेंस है प्लस है, ये डिस्टेंस है माइनस ए. और इस पॉइंट से जाने वाली जो लाइन है विच इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड एज अ डायरेक्ट्रिक्स. इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स. एंड ये डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स. एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, अभी क्या है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है वो क्या है, माइनस ए पॉइंट है, और माइनस ए पॉइंट से ये लाइन जा रही है. तो इसका इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, और इसका इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस ए को इस साइड को लेंगे, एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0. सो रिमेंबर दैट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए. तो हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसका भी इक्वेशन क्या होता है, ये हमने सब यहाँ पे सीख लिया. अभी इस पैराबोला पे मैंने एक पॉइंट लिया है, दैट इज़ पी, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज एक्स एंड वाई. एंड यहाँ से यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज़ पी एम. यहाँ पे एम है, ये जो पॉइंट है वो है एम. एंड यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर ही है, तो पी एस. तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रेशो है, दैट इज़ पी एस अपॉन पी एम इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ई. यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है. सो पी एस अपॉन पी एम इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ई, एंड ई का जो वैल्यू रहता है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. E is 1, so PS upon PM is equals to 1, and so PS is equals to PM. तो ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है. आफ्टर दैट ये जो लाइन है आप यहाँ से देख रहे हैं कि PS, ये मैंने यहाँ पे कंटिन्यू की, मतलब ये एक परपेंडिकुलर लाइन है. एंड जिसके पॉइंट्स जो है, अभी मैं ये पॉइंट लिया है, ये ऊपर का छोड़ दो, अभी मैंने नीचे भी एक पॉइंट लिया है, सेम फिगर में दिखा रही हूँ. सो इस पर ही मैंने पॉइंट लिया. So suppose this is point L which is on the parabola, and same point नीचे भी है, that is L dash करके हम उसको डिनोट करेंगे, ये L dash. तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है which passes through the focus L dash. तो L से यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये जो डिस्टेंस रहता है यहाँ पे, ये वाला, वो रहता है 2a. इट इज़ ऑलवेज 2a. ये जो डिस्टेंस है वो 2a, जितना ऊपर है उतना ही वो नीचे रहता है. सो इट इज़ डिनोटेड बाय -2a. तो यहाँ से
मैंने अभी बोला अभी कि ये जो डिस्टेंस है एल एस ये रहता है 2a एंड एस एल डैश ये जो डिस्टेंस है वो रहता है -2a। तो एल के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे? अभी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा a एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 2a। तो a इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एंड एल डैश के a एंड -2a होगा। मतलब हमें क्या लिखना है कि एल एस जो डिस्टेंस है वो है 2a एंड एल डैश एस ये जो डिस्टेंस है वो 2a। मतलब अगर हमें ये जो पूरी लाइन है एल डैश ये जो लाइन है पहले हम बोलते हैं कि एल डैश को बोलते हैं लैटिस रेक्टम। यहाँ पे मैंने लिखा है एल डैश को हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम और इसकी जो लेंथ है द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज़ ऑलवेज 4a। कैसे आया 4a? तो ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है 2a और ये भी डिस्टेंस कितना है 2a। डिस्टेंस इज़ 2a, ये नीचे आ रहा है सो मैंने -2a लिखा है, लेकिन ये डिस्टेंस 2a ये भी 2a, सो दोनों मिला के कितने हुए 4a। So the length of lattice rectum that is L dash is always 4a. So these are the terms related to the parabola and इस टाइप का ये जो है यहाँ के मैंने जो दिखा है कि इसका जो एक्सिस है वो है x एक्सिस और वो y एक्सिस को टच करता है। तो इस टाइप का जो पैराबोला रहता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला एंड द इक्वेशन ऑफ दिस वन इज कॉल्ड एज अ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। इसका एक्सिस रहता है x एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पर भी इसका भी जो एक्सिस है वो x एक्सिस ही है लेकिन वो निगेटिव है एंड सब पार्ट जो इसमें मैंने ड्रॉ किया था दैट इज़ डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया था, फोकस किया था, वो इसमें भी है। यहाँ पे फोकस होगा उस ये जो डिस्टेंस है इतना उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा उसका डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट में रहता है। सो ये निगेटिव पार्ट में आता है। सो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन? यहाँ का जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड ये जो रहता है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x। सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो द डायरेक्शन इज चेंज एंड ये इस टाइप का भी फिगर रहता है। सो इसको हम वर्टिकल पैराबोला ऐसे भी बोलते हैं। अभी देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस, इन दोनों का जो एक्सिस है वो है x एक्सिस। x एक्सिस पे वो पैराबोला है लेकिन यहाँ पे जो इसका एक्सिस है वो है y एक्सिस। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, इसका भी एक्सिस है y एक्सिस एंड ये x एक्सिस को टच कर रहे हैं। अभी इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके नीचे होगा और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके ऊपर होगा। सो व्हाट इज़ द इक्वेशन? दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by एंड यहाँ पे होगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4by। नीचे आ रहा है, यहाँ पे सब निगेटिव रहता है। अभी आपको जो इक्वेशन मैंने अभी बताया दैट इज़ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, उसमें से a कौन है? तो ये यहाँ से दैट इज़ ओरिजिन से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो है a। वैसे ही यहाँ पे ओरिजिन से ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है वो हम b बोलते हैं। सो द इक्वेशन इज चेंज दैट इज़ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। सो आपको सब पार्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ द पैराबोला। अगर आपको ये पता है तो भी आप इसके जो एग्जाम्पल्स है अभी क्वेश्चन नंबर 2 में वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द पैराबोला गिवन इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। तो बोलो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x मतलब ये है राइट हैंडेड पैराबोला। तो मैंने यहाँ पे उसकी फिगर ड्रॉ की है। इट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम। सो यू नो द वर्ड दैट इज़ लैटिस रेक्टम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये एल डैश इसको हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम। तो ये है लैटिस रेक्टम एंड हमें ये पता है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट इज़ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। मतलब यहाँ पे अगर हम ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर करते हैं तो इसमें द वैल्यू ऑफ 4a इज़ नथिंग बट द 16। तो 4a इज इक्वल्स टू 16। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ नथिंग बट द 4। तो a आपको पता है कि a हम किसको बोलते हैं? सो द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड फोकस, ये जो डिस्टेंस है वो है a एंड फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं अभी सीखा दैट इज़ a0 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया दैट इज़ 40। सो हियर वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस दैट इज़ 40। अभी हमें इक्वेशन ऑफ द लैटिस रेक्टम भी सीखना है। तो ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है इस लाइन को हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम। अभी ये लाइन जो है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था a, मतलब ये पॉइंट a है यहाँ से
तो ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, दैट इज़ 4, मतलब ये जो लाइन है वो 4 से पास हो रही है. सो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x इज इक्वल्स टू 4. x इज इक्वल्स टू 4. सो द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल इज ऑल्सो x इज इक्वल्स टू 4. एंड बाकी का भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जाम्पल नंबर 7 हमने अभी जो सॉल्व किया था, यहाँ पे ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल बिल्कुल ही सेम है. तो ये आगे वाला एग्जाम्पल्स आप ये देख के कर सकते हैं. एंड द आंसर विल बी द 128/3. तो यही एग्जाम्पल आपको पूरे यहाँ से आगे आपको कंटिन्यू करना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 4 - x² एंड x एक्सिस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x² हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया है, अभी जो हमने इक्वेशंस देखे हैं पैराबोला के, तो इसमें हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे y² इज इक्वल्स टू 4x इक्वेशन है. y² इज इक्वल्स टू 4x, x² इज इक्वल्स टू 4by एंड x² इज इक्वल्स टू -4by. तो ये दो पैटर्न तो हमें नहीं दिखाई दे रहे. ये जो पैटर्न है वो इन दोनों में से कोई तो है. तो हम क्या करें, x² की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. x² इज इक्वल्स टू x² को यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे लेंगे. सो 4 - y, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² इज इक्वल्स टू -y + 4. तो यहाँ पे हम जो पैराबोला हम देखने जा रहे हैं वो कैसा होगा, -y है यहाँ पे. तो -y मतलब ये जो होगा वो ऐसा डाउनवर्ड वाला, मतलब निगेटिव, दैट इज़ डाउनवर्ड है. और आप हम ऐसे भी वो इसको बोलते हैं कि नीचे वाला जो पैराबोला है वो यहाँ पे हमने देखना है. तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है, तो ये +4 वाला पार्ट दिखाई दे रहा है. तो इस टाइप का जो पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अब ये देखो ओरिजिनल वो कैसे होता, ऐसे यहाँ से होता, लेकिन +4 हमें दिया है तो +4 हम इसके ऊपर दिखाएंगे. 1 2 3 और 4. +4 है इसलिए हमने उसको थोड़ा सा आगे ले लिया है. ये y एक्सिस पर ही पैराबोला है, लेकिन +4 यहाँ पे है तो हमने उसको ऐसे दिखाया. अगर वो -4 होता तो हम इसको ऐसे नीचे दिखाते. एंड x एक्सिस हमें दिया गया है. नाउ द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस आपको पता है दैट इज इट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0. ये इसका जो इक्वेशन है वो. एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड x एक्सिस इज इक्वल्स टू x² इज इक्वल्स टू 4. तो x² इज इक्वल्स टू 4 आया, मतलब x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे +-2. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे उसके, -2 एंड 0 एंड 2 एंड 0. तो यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +2 होगा. तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो -2 0 एंड इसका होगा 2 एंड 0. सो द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड x एक्सिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx दैट इज़ फ्रॉम -2 to 2. कौन सा रीजन हम देख रहे हैं अभी, अगर हमने इसको नाम दे दिया तो A C B O. तो ये टोटल पार्ट जो है वो हम देख रहे हैं. सो -2 to 2 यहाँ का जो लिमिट है वो -2 से 2 तक होगा. एंड y dx, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y dx. तो यहाँ पे हम पुट डाउन करेंगे 4 - x². y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो y क्या होगा, 4 - x² हमें एग्जांपल में दिया है. तो हम सेपरेट करेंगे उसको. तो a इज इक्वल्स टू 4 dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² dx एंड द लिमिट इज़ -4 to 4 -2 to 2 -2 to 2. तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 4x होगा -2 to 2 एंड यहाँ का होगा x³/3 -2 to 2. 4 मैंने बाहर ले लिया. सो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट. तो यहाँ पे होगा 2 माइनस ऑफ 2. यहाँ पर भी 1/3 हमने बाहर ले लिया. तो 2³ माइनस ऑफ -2³. तो 4 यहाँ पे -2 +2 2 + 2 दैट इज़ 4 -1/3 2³ इज़ 8 एंड यहाँ पर भी 8 होगा. तो 16 - 16/3. तो यहाँ पे हमें मिला दैट इज़ 16 - 16/3 आफ्टर टेकिंग LCM दैट इज़ 3 48 - 16 एंड सो द आंसर इज़ 32/3 यूनिट स्क्वायर. टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स दिए गए हैं वो बहुत सारे गलत है. तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज़ 32/3 यूनिट स्क्वायर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स है. रिमेनिंग एग्जाम्पल्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.
यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट किए।